Welcome back. Today is the session number 8 of NEET Physics. Today we will be doing the questions from the chapter of motion in a plane. I will try to do 3 or 4 questions in a span of 30 minutes. These questions were asked in the NEET and the CBSE pre-medical test examinations. And this is the first session from the chapter of motion in a plane. So I have written down 2 questions here. So we will first of all do these 2 questions, and thereafter we will be doing a couple of questions from which were asked in the NEET examinations. So the first question is that if the cross product of 2 vectors is equal to under root 3 and A dot B is the scalar product of 2 vectors, then the value of A plus B is what? So we know that the cross product of 2 vectors is equal to the magnitude of A, magnitude of B, sine theta, and the dot product or the scalar product of 2 vectors is equal to magnitude of A, magnitude of B, cos theta. ठीक है. So यहाँ पर दिया हुआ है कि as this that the cross product is equal to root 3 A dot B. So हम इसको लिख लेंगे that is magnitude of A, magnitude of B, sin theta is equal to root 3 magnitude of A, magnitude of B, cos theta. So यहाँ से आपको मिल जाता है, इसको cos theta से डिवाइड कर देंगे, so we will get tan theta. So tan theta is equal to root 3, which is, it implies that theta is equal to 60 degree. ठीक है, tan theta is equal to root 3, so theta is equal to 60 degree. Now we will use the parallelogram law of vector addition. उसमें क्या होता है आपको, वैसे I have explained in the previous sessions also that अगर ये 2 वेक्टर्स हैं, अगर ये लेट्स से ये A है वेक्टर, ये वेक्टर B है, and these 2 vectors are represented by the 2 sides of a parallelogram. Parallelogram इस प्रकार से मैंने बना दिया, ठीक है. So इनका जो रिजल्टेंट है R, लेट्स से कोई मैं R ले लेता हूँ, लेट्स से R, ठीक है. So this R is the resultant of these 2 vectors. So R will be equal to vector A plus vector B. ठीक है, और इसका जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसका भी फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है. दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस विल बी इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos theta, where theta is the angle between these 2 vectors. ये आपका थीटा हो गया. तो थीटा हमने निकाल लिया, 60 डिग्री हो गया. नाउ the vector sum of these 2 vectors, that is vector A plus vector B is equal to the resultant R. So the resultant of these 2 vectors is equal to vector A plus vector B, and this vector R is given by this formula. So we have to simply use this formula in order to find the value of this A plus B. ठीक है. So it's very easy. So we can write down that this magnitude of A plus B will be equal to under root of A square plus B square plus 2AB cos theta. So this will equal to, now cos theta की वैल्यू कितनी होती है, प्लस 2AB, cos theta होती है आपके 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा. So finally we will get the answer as A square plus B square plus AB. ठीक है. So हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो ये है, दैट इज द ऑल्टरनेटिव A. So यहाँ पर आपको खाली ये 2 फॉर्मूलेज लगाने हैं. You have to you should know these 2 formulas, that is the cross product of 2 vectors is equal to
that is cross product of A and B will be equal to magnitude of A, magnitude of B into sin theta, and this dot product of two vectors is given by magnitude of A and magnitude of B cos theta. ठीक है, these are A and B are the two vectors. So ये इस प्रकार से थीटा हमने निकाल दिया यहाँ पर, थीटा की वैल्यू हमने इस नाउ वी हैव देन सेकंड स्टेप में हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज किया. तो उसके हिसाब से क्या है कि दैट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर इज गिवन बाय द रिजल्टेंट of these two vectors is written like this, that is resultant vector, that is the resultant of A and B is equal to is equal to the vector sum of vector A and vector B. ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. ठीक है, ये इसका जो फॉर्मूला है दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. तो इसी फॉर्मूले को मैंने यूज कर लिया. सो बिकॉज दिस सो रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स will be equal to the vector sum of vector A and vector B, and since we have to find the magnitude of A plus B, so we will use this formula. तो ये हमारा आंसर आ गया, and this is the correct answer is A. Now let's do the second question. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इफ A and B these two vectors are perpendicular to each other, this is perpendicular to each other, then we have to find the value of alpha. Perpendicular to each other में क्या होता है कि आपका अगर हम we can use both these formulas, that is vector A का जो और vector B का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा. ये भी यूज कर सकते हैं या आप इसको भी यूज कर सकते हैं, दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा. दोनों ही आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, अभी मैं इसको यूज करता हूँ बाय यूजिंग द फर्स्ट वन. सो ए डॉट बी क्या हो गया, 2i प्लस 3j प्लस 8k डॉट 4j माइनस 4i. तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, माइनस 4i हम पहले लिख लेंगे, माइनस 4i कर लेते हैं प्लस 4j प्लस अल्फा के. दिस विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए एंड दिस विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस. नाउ अगर ये परपेंडिकुलर है तो थीटा क्या हो गया आपका 90 हो गया, सो cos 90 हो गया विच इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब हमें खाली क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स विच इज इक्वल टू 0. सो हम क्या कर सकते हैं, नाउ हमें ये पता है कि जब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ आई डॉट आई कितना होता है, ये हो जाता है हमारा 1. इसी प्रकार से j इंटू जे क्या होता है, ये भी हमारा होता है 1. k इंटू क्या होता है, k डॉट k ये भी हमारा होता है 1. वेयर एज i डॉट j या k लेट अस से k है ये हो जाएगा 0. i डॉट j ये भी 0 हो गया, या j डॉट k वो भी 0 हो जाएगा. क्यों होगा, बिकॉज अगर आप यहाँ पर अगर हम a की जगह पर i लगाएंगे और यहाँ b की जगह पे भी i लगा देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है बट और इनके बीच का जो एंगल है वो 0 है तो ये 1 हो जाता है. इसीलिए i डॉट i दैट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस i एंड i इज इक्वल टू 1. इसी प्रकार से j डॉट j भी हमारा 1 हो जाएगा, k डॉट k भी हो जाएगा, बट i डॉट j या i डॉट k वो क्या होगा, वहाँ पे थीटा हो जाएगा आपका 90, तो इसलिए ये आपका वैल्यू 0 हो जाएगा. सो हम आगे बढ़ते हैं हम. सो 2i डॉट ये माइनस 4 तो ये हो जाएगा माइनस 8 दिस i कैप डॉट i कैप कितना हो जाएगा आपका 1.
तो ये हो गया 1, तो मैंने यहाँ पे -8 हो गया। अब आता है आई और जे। आई दैट इज आई कैप और जे, आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा, वो आपका हो जाएगा 0, ठीक है, बिकॉज इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री है, तो ये जो है आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इसी प्रकार से आई और के की जो वैल्यू है वो भी आपकी 0 हो जाएगी, आई और के, ठीक है। आई कैप डॉट के कैप भी 0 हो जाएगा, तो ये भी, इसका भी हम मतलब दिस विल बी इक्वल टू 0। नाउ 3j and this dot -4i this I, so j कैप और i कैप जो है इसका जो स्केलर प्रोडक्ट हो गया मेरा 0, तो ये भी 0 हो गया। अब j और j आते हैं, j और j में क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 12। नाउ j कैप और j कैप का जो दिस डॉट प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा मेरा 1, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 12 लिख लिया, ठीक है। और j और k फिर 0 हो जाएगा, k एंड i का जो जिस डॉट प्रोडक्ट है वो आपका 0 हो जाएगा। नाउ k और j इसका भी जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी आपको 0 हो गया। सो अब बचता है हमारा सिर्फ ये, तो 8 अल्फा प्लस 8 अल्फा, ठीक है, एंड k डॉट k जो है वो मेरा हो जाएगा 1, सो दिस इज इक्वल टू 0। सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग इज, ये हो गया आपका -8 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 8 अल्फा इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट 8 अल्फा इज इक्वल टू -4 और अल्फा इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पर आंसर आ जाता है हमारा सी। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज -1/2, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है आप इसमें ये भी यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो। इस केस में यही होगा। नाउ इस केस में बस ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, क्यों हो जाता है, बिकॉज ए डॉट बी जो है ना, जब आप इसका आप ये मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिख के इसको जो वैल्यू निकालते हैं दैट इज आई जे के, एंड देन इसका जो कोफिशिएंट है आई जे के का यहाँ लिखेंगे 2 3 8, देन लिखेंगे हम यहाँ पर -4, बिकॉज आई का जो कोफिशिएंट है वो -4 है, एंड इसके बाद में ये हो जाएगा J4 हो जाएगा और यह हो जाएगा अल्फा। इसकी जो है मैट्रिक्स की हमें पहले वैल्यू निकालनी है, ठीक है, वो निकालेंगे। इसकी वैल्यू जो है ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी निकालनी पड़ेगी, दैट विल बी, अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर दिस इज इक्वल टू, अगर ए की हम बात करें सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ दिस, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है। इसी प्रकार से मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा, विच विल इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ दिस 4 स्क्वायर, दैट इज आई है ना, तो -4 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। सो आपको पहले ए दिस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, वो निकालोगे आप, फिर इसके मैग्नीट्यूड ये होगी, फिर इसके मैग्नीट्यूड ये होगी, तब इसको आप इसमें आप अल्फा की वैल्यू आप निकाल पाएंगे। नाउ दिस विल बी अ लेंथी प्रोसेस, आंसर सेम ही आना है, बट जो डॉट प्रोडक्ट में क्या है इट इज़ वेरी इजी, बिकॉज यहाँ पर क्या है, ये तो फर्स्ट थिंग ये हो गया कि आपका दिस क्या कहते हैं, ये वाला क्या कहते हैं दिस वन, हाँ, बिकॉज दीज टू आर परपेंडिकुलर हो गए, तो ये जो है cos थीटा आपका 90 हो गया, सो ये cos 90 हो गया 0, तो ये वाला जो है ना दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड इक्वेशन। सो ये ए दैट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू दिस वेक्टर दैट इज ये और ये, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाता है। और फिर ये इसका जो हमने निकाल दिया, इन दोनों वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो निकाला, विच इज़ वेरी वेरी इजी इन कंपैरिजन टू दिस मेथड। सो ये सो इस इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए द बेस्ट वे इज टू यूज दिस वी शुड यूज दिस द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का जो फॉर्मूला है वो हमें यूज करना वो ज़्यादा आसान होता है। अब एक क्वेश्चन और है, ये अच्छा क्वेश्चन है, एंड ये बेसिकली आपकी कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करने के लिए है। यहाँ पे इन्होंने ना कई सारे वेक्टर्स बनाए हुए हैं क्वेश्चन में। ये एक वेक्टर दिया हुआ है ए, इसके बाद में एक इन्होंने वेक्टर बना दिया ऐसा करके बी, इसके बाद में इन्होंने एक वेक्टर यहाँ बनाया हुआ है सी,
इसके बाद में एक वेक्टर बनाया डी, इसके बाद में एक वेक्टर इन्होंने बनाया है ऐसे करके ई, और एक वेक्टर ऐसे बनाया है एफ। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन इसमें कोई है, इसमें ये लिखा हुआ है दीज आर द 6 वेक्टर्स which have the magnitude and direction as indicated in the figure, which of the following statement is correct। अब इसमें से इन्होंने 4 स्टेटमेंट लिखी हुई है कि इनमें से ये है आपका ये बता दिया गया कि दिस इज द वेक्टर है हैविंग दिस डायरेक्शन, बी का ये डायरेक्शन है, सी का ये, एफ का है, ये है, ई का भी दिया हुआ है, डी का दिया है। तो अब जिन्होंने 4 ऑप्शन दिए कि कौन सा जो है आपका स्टेटमेंट सही है, दैट इज बी प्लस सी इज इक्वल टू एफ, बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये जो दिया हुआ है दिस इज द वेक्टर सम, that is the vector sum of these two vectors is equal to f। ठीक है, now second thing is d plus c is equal to f, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड है d plus c is equal to f। ठीक है, देन है d plus e is equal to f, d plus e is equal to f, and fourth one is b plus e is equal to f, b plus e, okay। And this question was asked long time back in CBSE, that is the AIPM, that is the All India Pre-Medical Test होगा, which in 2010 it is a very this question was asked long time back, approximately 13 years back। so इसमें now इसको करने से पहले मैं आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स के बारे में, जो मैंने अपने पिछले सेशंस में जो है आपको बताया हुआ है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स के बारे में फिर से एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ। इन द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स लेट अस से देयर आर 2 वेक्टर्स, एक ये वेक्टर है और आपका एक ये वेक्टर है। ठीक है, तो ये मैं कहता हूँ लेट अस से दिस इज वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है। सो इन द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स द हेड ऑफ वन वेक्टर शुड टच द टेल ऑफ अनदर वेक्टर। तो अगर इस केस को मैं लेके चलूँ तो ये टेल यहाँ मैंने क्या किया, इसको, इस वेक्टर को मैंने यहाँ पे ले आया और इसको जो है मैंने यहाँ पे टच करा दिया, और विदाउट डिस्टर्बिंग दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन दीज 2 वेक्टर्स। ठीक है, तो ये वेक्टर्स को ये, हाँ, अब यहाँ जो मैंने वेक्टर बनाया है ये ऐसे करके, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर बी। ठीक है, इसकी जो लेंथ है ये, द लेंथ इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, और एरो जो है इट गिव्स द डायरेक्शन। तो इस वेक्टर का और इस वेक्टर, ये जो लेंथ है दोनों की सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग दिस वेक्टर। ठीक है, सो इसका जो रिजल्टेंट क्या होगा, उस केस में रिजल्टेंट क्या होगा कि while using the triangle law of this vector addition, the 2 vectors, इसको मैंने ले लिया ओ ए बी, लेट अस से पी क्यू आर कर दिया। In the triangle law of vectors, the 2 vectors are represented by the sides of a triangle। ठीक है, ये आपका वेक्टर बी है। ठीक है, they are represented by the sides of the two triangle taken in the same order, and the third side, that is the resultant vector, is represented by the third side of that triangle taken in the reverse order। that is reverse order और same order का मतलब ये है कि इनका जो वेक्टर एडिशन होगा वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होगा, दैट इज इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, लाइक दिस वन। जैसे यहाँ पर ए है और ये बी है, तो ये हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, तो इनका जो एडिशन आप देखो ध्यान से, ये ऐसे है, लाइक दिस। ठीक है, और इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो ये आ रहा है। सो द एडिशन ऑफ these 2 vectors which are represented by the sides of a triangle are taken in the same order, and the resultant of these 2 vectors, that is say r, will be represented by the third side of that triangle taken in the reverse order। एडिशन अगर ऐसे हो रहा है तो जो रिजल्टेंट है उसका ऑर्डर हो जाएगा ऐसे। so this is equal to r। so a plus b is equal to the vector that is the vector addition of these 2 vectors is equal to
दिस रिजल्टेंट आर, ठीक है। अब इसी चीज को हम लगाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। दैट इज, अब यहां देखो आप, अगर मैं ये वेक्टर ए है, तो अगर मैं कोई भी, अगर मैं वेक्टर ए है, ठीक है, अब ये वेक्टर बी है, इसकी जो टेल अगर मैं यहां पे लेके आ जाऊं, यहां पर फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके, मान लीजिए ऐसे करके यू, ठीक है। नाउ ये जो है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग दिस वेक्टर बी, इसका जो लेंथ है और इसकी लेंथ है बराबर है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये हो गया ऐसे। तो इसका जो रिजल्टेंट है आर, ये वाला जो रिजल्टेंट है वो कहाँ जाएगा, ये डायरेक्शन होगा ऐसे करके। अब इस डायरेक्शन में तो कोई वेक्टर है ही नहीं हमारे पास में इनमें से, ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब हमको ये देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन बैठ पाएगा। सो अभी ये देखो आप, ये वेक्टर एफ ऐसे जा रहा है, डी ऐसे है, ई ऐसे है, तो अगर मैं इनको ये कॉम्बिनेशन को लेके चलूं, क्योंकि यहां मुझे लगता है कि हो जाएगा, डी इज ई ऐसे जा रहा है, यूजिंग द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स द टेल ऑफ वन वेक्टर शुड टच द हेड ऑफ अनदर वेक्टर। तो ये वेक्टर ई हो गया, ये डी है, ये ई हो गया, ये ठीक है ना, ये हेड, तो इसका हेड जो है इसके टेल से टच हो गया। नाउ ये वेक्टर ई है और ये वेक्टर डी है, तो इनका जो वेक्टर सम है क्या होगा, दिस विल बी गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। सो लेट अस से ये आपका ये है, अगर ये देखिए एफ, ठीक है, दिस इज द वेक्टर एफ, जिसका डायरेक्शन ये है, दिस वन, ठीक है। तो वेक्टर ई, दैट इज ई प्लस डी इज इक्वल टू एफ। कैसे, वी हैव यूज्ड द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, दैट इज द two vectors, the two vectors that is E and D, they are represented by the two sides of a triangle. Let us say ये triangle को मैं लिख देता हूँ ABC. So the two vectors that is E and D are represented by the two sides of a triangle taken in the same order. Taken in the same order means their this vector addition will be taken in the same direction, means in like this one. यहाँ पे आप देखेंगे इनका ऑर्डर ये है, that is the vector addition of these two vectors which are represented by the sides of these two triangle is in this order. ये इनका ये ऑर्डर है, and the resultant will be represented by the third side of a triangle taken in the reverse order. ये देखिए, ये ऐसे है, जो रिजल्टेंट एफ है इसका जो ऑर्डर है वो ये है, और इन दोनों वेक्टर्स का जो हमने एडिशन किया है दैट हैज बीन डन इन दिस ऑर्डर, ठीक है। सो ये हो जाएगा मेरा E प्लस डी इज इक्वल टू एफ, या आप इसको ऐसे, ठीक है, ये होगा E प्लस डी इज इक्वल टू एफ। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, वी हैव मेड वन कॉम्बिनेशन आउट ऑफ दिस एंड दिस वेक्टर। तो यहाँ पर आकर आप देखेंगे तो D प्लस ई इज इक्वल टू एक आपका ऑप्शन यहाँ पे निकल के आ रहा है। बाकी जितने भी ऑप्शन जैसे B प्लस सी करेंगे, B प्लस सी अगर आपने कर भी दिया, मान लीजिए सी को मैंने यहाँ पे टच लगा, ये कर भी दिया, इधर सी इधर कर भी दिया, ठीक है, तो क्या ये बी, ये एक रिजल्टेंट मेरे को ऐसे मिलना चाहिए, इसका जो रिजल्टेंट ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, बी प्लस सी हो नहीं सकता, डी प्लस सी डी प्लस सी, अब डी और ये है, और अगर मैं डी को मैंने यहाँ पे बना दिया, मैंने मान लो ऐसे करके डी, नहीं सॉरी ये सी है, डी को मैंने मान लो यहाँ बना दिया ऐसे करके, बिकॉज द टेल ऑफ वन वेक्टर शुड टच द हेड ऑफ अनदर वेक्टर। तो ये इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो ऐसे आ रहा है इस डायरेक्शन में। अब ऐसे डायरेक्शन में भी कोई रिजल्टेंट नहीं हमको यहाँ पे दिया गया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ये भी नहीं हुआ, ये वाला हमारा ऑप्शन आ गया। अब लास्ट ऑप्शन आप ये भी देख सकते हैं, बी प्लस ई इज इक्वल टू एफ होगा क्या, बी प्लस ई, अगर मैंने ई को इधर ले भी लिया, ये ई है, तो बी प्लस ई ये आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर के हिसाब से ये आपका रिजल्टेंट आ रहा है। अब इस डायरेक्शन में भी कोई हमारा वेक्टर नहीं दिया गया है, सो ये भी ऑप्शन जो है हमारे लिए फिजिबल नहीं है। ये अब ये ऑप्शन भी जो है दैट इज बी प्लस ई कैन नॉट बी इक्वल टू एफ, ठीक है, वो हो नहीं सकता क्योंकि एफ ऐसे जा रहा है और हमारा जो रिजल्टेंट है वो ऐसे है।
सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज D प्लस E इज इक्वल टू F. ठीक है ना, ये हमारा ऑप्शन आ गया. सो दिस इज हाउ वी, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द वेक्टर एडिशन इज डन यूजिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ दिस वेक्टर, एंड हाउ द वेक्टर एडिशन इज डन यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि मैंने अपने प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है. सो ये क्वेश्चन जो है बेसिकली देखा जाए तो आसान है, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है. द ओनली थिंग दैट यू शुड बी वेल वर्स विद द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी आपको आना चाहिए. और ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम लोगों ने, वी हैव डन दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. वहाँ से हमने ये इसका आंसर निकाला था. एंड another important thing is that you should be well versed with the scalar or the dot product of two vectors. उसके बारे में आपको एक अच्छा means you should know what the scalar and the dot product of two vector is and how it is different from the cross product of the two vectors. ठीक है, इसके dot product of two vectors give you a scalar quantity. ठीक है, and the cross product of two vectors जो है वो आपको क्या देगा, that will give you a third vector which is perpendicular to both the two vectors. That is, मान लीजिए आपने अगर a इसकी वैल्यू निकाली तो this will give you another vector, let us say C. Now this vector will be perpendicular to this vector and it will also be perpendicular to this vector. Whereas अगर आप निकालते हो वेक्टर A और वेक्टर B का जो है स्केलर प्रोडक्ट, तो it will give you a means the dot product of two vector will give you a scalar quantity. ठीक है, तो it is not going to give you the it will not give you another vector. ये आपको एक scalar quantity दे देगा खाली. Whereas this cross product of two vector will give you another vector which is perpendicular to both these two vectors. That is example के इस पे अगर कहते हैं कि I vector J vector का जो हमारा जो cross product होगा it will give you a K vector and this K is perpendicular to I and J. ठीक है, whereas इनका जो I और J का अगर हम बात करें, I और J का लेट अस से इसका अगर हम स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos 90 इन दोनों के बीच का एंगल दिया है 90, तो ये 0 हो जाएगा एंड इट इज गिविंग अ स्केलर वैल्यू. ठीक है, इसी प्रकार से I डॉट I क्या हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू 1 बिकॉज cos बिकॉज इन दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया, तो cos थीटा जो है वो आपकी हो गई 1 और इनका मैग्नीट्यूड, इन सबका मैग्नीट्यूड तो 1 ही है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंटू cos 0 cos 90, तो ये 0 हो गया. मैग्नीट्यूड ऑफ दिस दैट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंटू cos 0, वो होगा 1 हो गया. सो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल गिव यू a scalar quantity, whereas the cross product of two vectors will give you a third vector which is perpendicular to both these two vectors. That is, C will be perpendicular to B and it will also be perpendicular to A. Okay, so these are some of the basic things which you have to know about. And so for this session I had these 3 questions, and all these 3 questions were asked in the CBSE or in the NEET examination. And in the next session we will continue to do another 3 or 4 questions in the session number 9, and thereafter means I will try to cover up all the different types of questions from this chapter, that is the motion in a plane. And once we have covered all the different types of questions, we will move on to the next chapter. So thank you very much for joining, and have a nice day. Bye.